We will discuss about in the uniform circular motion, centripetal acceleration. So in the previous lecture, we already studied that when the particle is performing uniform circular motion, the direction of linear velocity is always tangential to the circular path, or it is perpendicular to that radius vector, and the acceleration is acting towards the center, and therefore that acceleration is called as centripetal acceleration, and the force which will be acting in the direction of that acceleration, that is called as centripetal force. Okay, क्योंकि according to Newton's laws of motion, force equal to क्या होता है, mass into एक्सक्लरेशन में से एखादी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो क्या होगा, वहां पर एक्सक्लरेशन प्रोड्यूस होगा. उसी तरह से यहां पर भी अगर सेंट्रीपिटल एक्सक्लरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब उस एक्सक्लरेशन के डायरेक्शन में क्या है, फोर्स है, और दैट फोर्स इज नथिंग बट द सेंट्रीपिटल फोर्स. सो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सक्लरेशन. तो वी हैव टू फाइंड आउट हियर द डेरिवेशन फॉर दैट centripetal acceleration. For that, consider a particle performing uniform circular motion on that circular path of radius r in the anti-clockwise direction. कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, anti-clockwise डायरेक्शन में. So r be the radius of circular path on which the particle is performing uniform circular motion with angular velocity omega. With angular velocity omega. Okay. Now, for convenience, consider that the particle starts its motion from this point P0 on the x-axis, and in time t, it reaches to that point, suppose P. Motion कहाँ से start किया उसने, point P0 से on the x-axis, and in time t it reaches to that point P. During that time, this is the angle traced by that radius vector. During this time t, how much angle will be get traced by the radius vector, theta. इस time t में ये जो radius vector पहले यहाँ पे रहेगा, time t में कितने एंगल से सामने गया, वो थीटा इतने एंगल से सामने गया, उसको बोलते हैं अपन एंगल ट्रेस्ड बाय दैट रेडियस वेक्टर इन टाइम t. दिस इज नथिंग बट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ये क्या हो गया उस पार्टिकल का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ओके, और ये पीओ जो रहेगा ये हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट. पीपीओ क्या हो गया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो कैसी रहती है, टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ. बट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. एंगुलर velocity means rate of change of angular displacement with respect to time, that is called as angular velocity. जैसा linear velocity means क्या होता है, rate of change of displacement with respect to time, that is called as linear velocity. उसी तरह से यहाँ पर rate of change of angular displacement with respect to time is called as angular velocity. It is in the angular form. So in time t, how much angle will be get traced by that radius vector theta. So here omega equal to what, theta by t, means theta equal to क्या मिलेगा, ओमेगा t. थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, ओमेगा टी, क्योंकि एंगुलर स्पीड कितनी बोले अपन ने पहले, ओमेगा. देन दिस इज द रेडियस वेक्टर r और पोजीशन वेक्टर r विच डिनोट्स द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल p आफ्टर टाइम t. So resolve that radius vector r into its two components, one along the x axis and one along the y axis. ठीक है, तो x axis के क्रॉस का कंपोनेंट क्या होगा, r cos ऑफ थीटा, और y axis के क्रॉस का कंपोनेंट क्या होगा, r sin थीटा. ओके, क्योंकि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो. ये हो गया वेक्टर a, तो इसके दो कंपोनेंट, इधर क्या आता है अपना a cos थीटा, तो इधर क्या आता है a sin थीटा. ओके, सो देयरफॉर रेडियस वेक्टर r इक्वल टू i r cos ऑफ थीटा प्लस जे आर साइन ऑफ थीटा. ठीक है, आई ए एक्स प्लस जे ए वाई लिखते हैं. उसी तरह से यहां पर वेक्टर आर इक्वल टू एक्स एक्सिस के क्रॉस का यूनिट वेक्टर आई, एक्स एक्सिस अक्रॉस का कंपाउंड कौन था, आर कॉस थीटा, मीन्स आई आर कॉस थीटा प्लस जे आर साइन थीटा. जे क्या हो गया, यूनिट वेक्टर अक्रॉस दैट वाई एक्सिस, और आर साइन थीटा क्या हो गया, कंपोनेंट अक्रॉस दैट वाई एक्सिस. ओके, बट थीटा इक्वल टू कितना है, ओमेगा टी. सो दिस बिकम्स व्हाट, वेक्टर आर इक्वल टू
आई आर कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस जे आर साइन ऑफ ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1. ओके, नाउ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, पार्टिकल ने मोशन कहां से स्टार्ट किया था? पॉइंट P0 से. टाइम t के बाद में रेडियस वेक्टर कहां पे पहुंच गया? पॉइंट P पर. मींस पार्टिकल के साथ साथ में क्या हो रहा है? रेडियस वेक्टर भी आगे बढ़ते जा रहा है. कुछ देर के बाद में पार्टिकल यहां पर आएगा इस पोजीशन पे, तो रेडियस वेक्टर इस तरह से आगे आएगा, सामने आएगा. मींस देयर इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ दैट रेडियस वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. क्या मिलेगी उससे अपने को? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट इज v इक्वल टू dr बाय dt. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे यहां पर पार्टिकल की पोजीशन चेंज होती जाएंगी सर्कुलर पाथ में, वैसे वैसे इस रेडियस वेक्टर की भी क्या होगी? पोजीशन चेंज होगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. इसलिए क्या बोल रहे हैं अपन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट इज द v. मींस हियर v इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर r, जिसकी वैल्यू कितनी है? आई आर कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस जे आर साइन ऑफ ओमेगा टी. ओके, देन separate the derivative. So we'll get here v equal to derivative of I r cos of omega t plus derivative of j r sin of omega t. Okay, see here derivative of cos theta होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा होता है cos थीटा. ओके, डेरिवेटिव ऑफ साइन के थीटा, के इज द कांस्टेंट. तो डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा क्या होता था? cos थीटा. तो डेरिवेटिव ऑफ साइन के थीटा, जिसमें के क्या है समझ लो? कांस्टेंट. तो हो जाता है के बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ cos के थीटा दैट इज द साइन, सॉरी साइन के थीटा विल बी व्हाट? cos के थीटा. ठीक है, मीन्स एक्चुअल में ऐसा है, वो इज इक्वल टू cos के थीटा मल्टीप्लाइड बाय अगेन डेरिवेटिव ऑफ दैट के थीटा. तो यहां से थीटा कैंसिल हो जाएगा, मीन्स क्या बचेगा यहां पर? कांस्टेंट के इंटू कॉस ऑफ के थीटा. उसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा. डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा क्या होगा? माइनस साइन थीटा. और यहां पर अगर कांस्टेंट रहते तो क्या आएगा? माइनस के इंटू साइन ऑफ के थीटा. ओके, अप्लाई द सेम फॉर्मूला हियर आल्सो. आई यूनिट वेक्टर आर रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ, वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट. बचा क्या अब यहां पर? डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी. डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी, देखो कॉस के थीटा क्या आता है? माइनस के साइन ऑफ के थीटा. तो उसी तरह से क्या होगा ये? माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू अगेन ओमेगा. साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू अगेन ओमेगा. साइन ऑफ के थीटा इंटू के. ओके, माइनस साइन के साथ इसे माइनस साइन सामने लिखता हूं. मीन्स दिस इज माइनस आई आर साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू ओमेगा प्लस, फिर से यहां पर देखो यूनिट वेक्टर जे बाहर आ गया, आर बाहर आ गया. डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी क्या थे? के थीटा क्या बोले थे अपन ने? के इंटू कॉस ऑफ के थीटा. तो यहां पर क्या होगा? ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी. ओके, फ्रॉम दिस you observed here this r omega will be obtained there, so I will take it outside the derivative और कांस्टेंट ले रहा है उसको. तो क्या बचेगा? माइनस आई साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस जे कॉस ऑफ ओमेगा टी. ओके, यहां से आर ओमेगा कॉमन निकाल लिए. देन आफ्टर दैट दिस इज द वेलोसिटी. देन एक्सलरेशन मीन्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टाइम इज कॉल्ड एज एक्सलरेशन. मीन्स फिर से इसकी डेरिवेटिव लेंगे अपन. तो क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ आर ओमेगा माइनस आई साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस जे कॉस ऑफ ओमेगा टी.
फिर से यहां से आर ओमेगा बाहर आ गया, कांस्टेंट करके बाहर ले लिए, डेरिवेटिव सेपरेट करता हूं मैं तो क्या आएगा माइनस डेरिवेटिव ऑफ आई साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेरिवेटिव ऑफ जे कॉस ऑफ ओमेगा टी. Okay, then solve this one again. I will write here r omega as it is. Okay, then derivative of I sin of omega t, ये माइनस साइन I बाहर आ गया, साइन ऑफ ओमेगा टी की डेरिवेटिव क्या बोले थे अपन, देखो यहां पर साइन ऑफ के थीटा मीन्स कॉस ऑफ के थीटा इंटू के मीन्स ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी. ठीक है, देन दिस वन जे डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी क्या आता है माइनस, मीन्स क्या आएगा माइनस, ये प्लस की जगह पे माइनस आ गया, माइनस जे ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू अगेन माइनस आर ओमेगा स्क्वेयर. ठीक है, ये फिर से ओमेगा ओमेगा दिख रहा है, बाहर ला रहे हैं, माइनस साइन बाहर ला रहे, तो क्या हो जाएगा यहां पे आई कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस जे साइन ऑफ ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर. ठीक है, इस आर से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा आई आर कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस जे आर साइन ऑफ ओमेगा टी. What is this? This is nothing but the radius vector r, जो थोड़ी देर पहले यहां पर लिखे थे अपन ने, आई आर कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस जे आर साइन ऑफ ओमेगा टी. था वाला इक्वेशन अपना इसके पहले यहां पर आई आर कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस जे आर साइन ऑफ ओमेगा टी दिख रहा है वहां पे. दिस इज इक्वल टू एक्सक्लरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर. ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सक्लरेशन. Here that negative sign shows that, negative sign क्या शो कर रहा है, negative sign shows that the direction of radius vector, the direction of radius vector and that acceleration is opposite to each other. ये हो गया radius vector की डायरेक्शन सेंटर से बाहर, तो acceleration कैसा है towards the center and therefore it is called as what, centripetal acceleration. इसीलिए क्या बोला उसको centripetal acceleration. मीन्स नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, रेडियस वेक्टर और ये जो एक्सक्लरेशन प्रोड्यूसर दोनों की डायरेक्शन कैसी एक में एक से अपोजिट है. रेडियस वेक्टर कैसा एक्ट हो रहा है अवे फ्रॉम द सेंटर, तो एक्सक्लरेशन कैसा एक्ट होगा टुवर्ड्स द सेंटर, इसलिए उसका नाम क्या है सेंट्रीपिटल एक्सक्लरेशन. इन मैग्नीट्यूड इट बिकम्स, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में क्या होगा ये, इन मैग्नीट्यूड ये हो गया डायरेक्शन के साथ में, इन मैग्नीट्यूड दिस बिकम्स एक्सक्लरेशन इज सेंट्रीपिटल एक्सक्लरेशन is equal to r omega square. Okay, again v equal to क्या होता है r ओमेगा या ओमेगा इक्वल टू v by r, ये रिलेशन देखे हो तुमने. ओके, पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा इन दिस इक्वेशन, दिस बिकम्स r ओमेगा जगह पे v by r मीन्स v स्क्वायर by r स्क्वायर, वन r गेट कैंसल मीन्स यू विल गेट हियर v स्क्वायर by r. ओके, या फिर से वी कैन राइट दिस वन एज अगेन आर ओमेगा इंटू ओमेगा, बट v इक्वल टू क्या है आर ओमेगा मीन दिस इज v इंटू ओमेगा. इस तीन इक्वेशन बन रहे हैं यहां पर, देखो अभी सेंट्रीपिटल एक्सक्लरेशन के लिए सेंट्रीपिटल एक्सक्लरेशन इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वेयर हो गया. दूसरा क्या मिला v स्क्वेयर बाय r और तीसरा क्या मिला v ओमेगा. ठीक है, तो रेडियस वेक्टर और एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में r ओमेगा स्क्वेयर, v स्क्वेयर बाय r मींस लीनियर वेलोसिटी और रेडियस के फॉर्म में v और ओमेगा मींस लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में. और उसी के अलाउंग क्या रहता है बोले अपन ने, फोर्स रहता है इन द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सक्लरेशन दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सक्लरेशन. मींस सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा अपना अब यम आर ओमेगा स्क्वेयर और यम वी स्क्वेयर अपॉन आर और
mv omega, and this is the necessary force for the circular motion. अगर कोई बॉडी के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होता है तो ही बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी, अदरवाइज इट विल नॉट परफॉर्म द circular motion. Okay, so in this way, this is about the centripetal acceleration and centripetal force. Okay, thank you.